Sridhar, just a sec. Unmute yourself. Unmute yourself, Sridhar. Just quickly tell about your problems. Okay. See, since the last 1 year, पिछले 1 साल से, uh, I had a problem in my foot, in my right foot, due to some infection where it's called cellulitis. It developed into a, what you call, it got healed for some time and then suddenly reappeared within a span of 1 day, due to which some gangrene formation was there. So we had to do some amputation on the right limb, right side. Foot, fifth limb has been amputated. Okay. तो ये इसके बाद उस समय उससे पिछले 1 साल से थोड़ा माइल्डली मेरा शुगर लेवल था कि ब्लड शुगर वाज hovering around 200 like that at that point of time. So इसकी वजह से हीलिंग थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन वी गॉट दैट थिंग एम्पुटेटेड. नाउ आई एम pretty okay. बट क्या हो गया पिछले 1 साल के अंदर? So I already had that what you call knee pain. When I got the diagnosis done, got a X-ray done, it was diagnosed as what you call uh, uh, osteoarthritis. Osteoarthritis OA. OA was in my left leg, where walking 5 मिनट के बाद वॉक कर नहीं सकता मैं, पेन शुरू हो जाता था. Then slowly other things came up, like what you call my diabetic neuropathy on my right foot because of edema, fluid formation. Feet में सूजन होता था. It was getting swelling up. Okay, उसके बाद I got treated with both allopathic as well as, I mean, Ayurvedic things. But right now, after the foot surgery, the swelling has come down. The last 3-4 months swelling नहीं है, but still I am under medication, taking those medicines. And of course, ये जो रात में सोने के टाइम में थोड़ा ये दोनों फीट में वो क्या होता है, अंदर फ्रीजिंग लेवल की थोड़ा ये होता था, क्या बोलते हैं उसको, cramps kind of thing was happening. So I was not in a position to sleep properly. Sleep was disturbed for nearly about 3-4 months. I was having that difficulty of sleeping. Then again, once again, the same doctor who did the what you call orthopedic foot surgery, he had given some what you call pain relievers at the same time to open up my nerves for better blood flow, so that cramping sensation comes down in the night. I am able to sleep. तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है. I was able to sleep for some time, but it is not a very consistent thing happening across. Okay. Let me tell you the problem. Yeah. And let us correlate the problem with all your conditions. Huh? Yeah. ब्लड फ्लो पाँव की तरफ में कम है या पाँव में स्वेलिंग ज्यादा हो रहा था. नाउ मेडिसिन लिया, तो व्हाट इज दैट मेडिसिन, एंड बिफोर टेकिंग दैट व्हाट वाज द मेडिसिन दैट यू वर टेकिंग. यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे जाएगा. मैं आपको आपकी प्रॉब्लम भी बता देता हूँ. आपके अंदर एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं अपान दोष. अपान दोष. नाउ यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट अपॉन योरसेल्फ, एंड व्हाट यू विल सी, from external point of view, your inhaling capacity or the inhalation capacity is less. Now, how you can do it? Just exhale and squat down and try to come up, slowly inhaling. What you'll see, it will be very difficult for you. Now, from outside, I've said, what is the problem? The apana dosha, inhaling capacity. I would rather say, because it is something that you don't come across, or you are not trained into speaking such terms and understanding such things. It is inhalation and hold rather. So from inside, what happens? It is from outside. Now from inside, the absorption capacity है ना, एब्जॉर्प्शन कम है. तो क्या है, आपको इंसुलिन इंटॉलरेंस, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता. सो व्हाट मेडिसिन यू आर, सी द कॉन्ट्रडिक्शन. आई विल टेल यू द कॉन्ट्रडिक्शन. Now, when the sugar goes high in your blood, what your body does is try to throw it out. Frequent urination, try to throw it out. Right? But your medicine tries to keep the sugar within the body. So your metformin is basically, it pushes your body to absorb the glucose in the blood.
Now the blood glucose goes to the kidney, goes to other organs, and the organ might get damaged. Now swelling started happening, fluid retention, because you are taking a medicine which will push the glucose inside your organs or in the extremities of your body. तो अगर वो उसकी वजह से वाटर जो है ना उसी में तो डिजोल्व होके ग्लूकोज जाएगा, तो वाटर रिटेंशन हो गया। अब आपको मेडिसिन क्या देना है? डायूरेटिक, जो यूरिन करवाए। तो व्हाई डिड यू स्टॉप द यूरिनेशन फर्स्ट? फिर डायूरेटिक देख के अगर आपको वो यूरिनेशन करवा के स्वेलिंग कम करवा रहे हैं, सेकेंड द अदर थिंग इज ना, कुछ ऐसा मेडिसिन दे के आपका नर्व, ताकि नर्व में ब्लड फ्लो ज्यादा हो, वो करवा देते हैं। बट योर कैपेसिटी डजंट इंक्रीजेस इन दिस होल गेम। Your body's capacity rather gets compromised because you are taking medicine and pushing the body to do something which it doesn't want to do. ठीक है ना? तो अगर आपकी अपान शक्ति वैसे ही बढ़ जाए, इफ यू इंक्रीज दैट फैक्टर, दीज थिंग कैन इजीली बी टेकन केयर ऑफ। जिसको आप आर्थराइटिस बोल रहे हो, कॉम्प्रोमाइज एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइज मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। अगर आपका इंजन ठीक से कन्वर्ट नहीं करेगा फ्यूल को पावर में, तो एग्जॉस्ट में ज्यादा वेस्ट करेगा ना, एफिशिएंसी कम होगी ना। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म, लिवर, बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, लिवर इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, इट इज कॉम्प्रोमाइज, so you are not able to utilize whatever you are putting in the body properly, so the waste products are getting formed more, which are toxins, which will cause inflammation, and the condition is called as arthritis. So the feeble absorption also did that. So where does everything get down to? If somebody would have said to you 20 years back that your absorption is weak or your inhalation capacity is weak, just improve it and you'll not get into other problems. You would not have got into all those problems. So we'll have to see where the problem lies, which in today's diagnostic system, it is not there. They don't know why diabetes happens. Their diagnosis doesn't tell why diabetes happens. They are trying to manage something which they think is not good. They think is not good. It is not truth. There is no science in it. Torturing your body cannot be called as science. Right? So that should be the last option. A chemical intervention should always be the last option. What should be the first option then? Improving the strength factors which you have lost through the age or because of something. है ना? बल आपके शरीर का, जो देह बल है वही रोग बल को ठीक करेगा। तो रोग बल ज्यादा है, देह बल नहीं है, तो रोग करेंगे। तो आपका देह बल बढ़ा, रोग ठीक हो जाएगा, है ना? देयर इज अ प्रूफ ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, इजंट इट? आज ही डायबिटीज प्रॉब्लम है ना, just 3 generations back in your own lineage there was no diabetes. हाँ जी। Okay, so we have Raman Singh ji over with us. She's I think primarily worried about sugar levels. Raman ji, so unmute करेंगे और अपने बारे में बताएंगे जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है। अगर नहीं भी बताएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। बट आप बोलिए, चलिए। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। तो मेरे को जी ये जेनेटिक है, लाइक माय ग्रैंडफादर हैड इट, देन मामा हैड इट, देन नाउ आई एम हैविंग। एंड मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली स्वामी जी आज तक। तो कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक फूड खा के तो वैसे ही कंट्रोल किया है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपको याद है? मेरे को पहले से ब्लड प्रेशर है। हाँ, मैं समझ गया। मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ। और बाद में हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों। और मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं। एक समझिए, एक बात बता दूं। हाँ, कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मैंने मसल बहुत लूज कर दिया। हाँ।
और फैटी लिवर है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये बात ना हर एक फीमेल को स्पेशली समझने की जरूरत है। देर आर मेल्स जिनको इस वजह से होता है, बट फीमेल्स को ज्यादा होता है। अच्छा, ग्रैंडफादर के अगर पापा मालूम होते तो क्या उनको भी डायबिटीज थी ये पता करते, या एक जनरेशन और पीछे चले जाते तो पता चलता कि नहीं। तो अभी ये 2-3 जनरेशन से डायबिटीज या फिर इससे रिलेटेड इशू या फिर ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ हो रहा है, ये पहले नहीं था। यानी कि वी हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 100 ईयर, 100 साल में ही हमने क्रिएट किया है, उसके पहले नहीं था। तो ये 100 साल में हमने क्रिएट कैसे किया है? बेसिकली हमने अपने शरीर को काम करने से रोका, या फिर उसको कोई काम करने पे मजबूर किया बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं अ, जो भी मेडिसिन है ना, वो दो ही तरीके से काम करता है। या तो आपके शरीर में एक काम को रोक देगा, है ना, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट यानी काम को रोक दिया, एगनिस्ट मतलब काम को जबरदस्ती करवा दिया, जो नहीं करना चाहता आपका शरीर। तो ऐसा अगर करेंगे तो इट विल इंपैक्ट द जेनेटिक्स एंड स्लोली पीपल विल बिकम म्यूटेंट। सो टुडेज जनरेशन इज ऑन जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग म्यूटेंट। कई तो म्यूटेंट है ही हमारे पृथ्वी पे। आपने हॉलीवुड मूवी अगर देखी हो तो वो बहुत ज्यादा गलत नहीं बोल रहे, म्यूटेंट तो बन ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है इसको समझना सबको जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे इसको ठीक नहीं कर पाओगे, ये बढ़ता जाएगा। एंड देर इज एन एविडेंस ना, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर हैज बिकम और हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। डायबिटीज एपिडेमिक हो रहा है ना। थायराइड सुना था क्या 30 साल पहले? थायराइड सुना था? सुना भी नहीं होगा। आज तो देखो कि कितने लोगों को। तो कफ वात प्रकृति, प्रकृति क्या है आपकी? कफ वात प्रकृति। इसका मतलब क्या है ये भी समझो। आपके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? कफ क्या होता है? बहुत गाढ़ा फ्लूइड होता है। जो फैट है ना वो भी कफ है। तो जब कफ प्रकृति होती है शरीर में तो उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है, उसके शरीर में फ्लो नहीं होती कोई चीज जल्दी। जैसे मान के चलो कि आपकी चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है तो चाय नहीं छनेगी ना। जिनकी भी स्किन बहुत ही चमकदार है, ग्लो कर रही है, शाइनी स्किन है, वो सारे कफ प्रकृति के। फीमेल मेदनी है यानी कफ प्रकृति की है, क्योंकि इसको एक बेबी पैदा करना है, उसका शरीर डिजाइन हुआ है इसके लिए। एक बेबी को जन्म देने के लिए डिजाइन हुआ, तो उसको कफ की मात्रा चाहिए। तो कफ प्रोटेक्ट भी करता है ना, मगर कफ एक और काम करता, आपके शरीर में किसी चीज को फैलने नहीं देता। जब कोई चीज फैलेगी नहीं, सपोज करो आप फूंक मारने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज के अंदर स्ट्रॉ में और उसमें कुछ फंसा हुआ है, तो जोर से फूंक मारोगे ना तो उसको निकालने के लिए, तो आप प्रेशर बिल्ड करने लग जाते हो ना, टू टू मेक इट जस्ट फ्लो। तो आपके शरीर में प्रेशर क्यों बिल्ड हुआ? क्योंकि फ्लो प्रॉपर नहीं था। तो आपका शरीर को तो जिंदा रहना है ना। इंसान को जिंदा रहना है नहीं रहना क्वेश्चन मार्क है ना, इट कैन बी डिबेटेड। बट बॉडी को जिंदा रहना है नहीं नहीं रहना, नो डिबेट। बॉडी वॉन्ट्स टू लिव, यू मे वॉन्ट नॉट वॉन्ट टू लिव, बट बॉडी वॉन्ट्स टू लिव। तो क्या करेगा? फ्लो बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाएगा। इसको आप बोल दोगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पर ब्लड प्रेशर तो आपको सपोर्ट करने के लिए बढ़ाना, so that flow happens. Now, in this condition, if you lower down blood pressure, what will happen? It is criminal. शरीर जिंदा रहना चाह रहा है तो वो थोड़ा फ्लो बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाता है, आप उसको कम कर देते। ब्लड प्रेशर कम करोगे तो हार्ट अटैक बढ़ेंगे दुनिया में। क्या प्रूफ है इसका? हाँ जी, नंबर देख लो, गूगल है ना सबके पास में। हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं आज के टाइम पे? तो अगर आप ब्लड प्रेशर कम करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर आप शरीर से पानी निकालोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम करने के जो भी तरीके हैं उसमें एक तरीका है, आपको डायूरेटिक दे देते हैं, है ना। लोसार्टन पोटेशियम, लोसाका, तोजा, रिपेस, ऐसा कुछ खा रहे होंगे, टेल्मी सार्टन, टेल्मा, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एस इनहिबिटर कहते हैं, ऐसे देते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा।
अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। अगर आपको ये लगता है कि WHO बुद्धिमान है तो आप गलत फहमी में हैं। अगर आपको लगता है कि अमेरिका बुद्धिमान है तो गलत फहमी में है, क्योंकि 100 साल में तो एक भी एविडेंस नहीं है डायबिटीज ठीक होने का, ब्लड प्रेशर ठीक होने का, हार्ट डिजीज ठीक होने का, एक भी एविडेंस नहीं। रादर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कफवात प्रकृति में शरीर में प्रेशर बिल्ड होना मतलब आपको बचाने के लिए है। अदरवाइज व्हाट यू डू, यू जस्ट वर्क अ लॉट, यू जस्ट डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज। कफवात प्रकृति से की वजह से थायराइड होता है। बेसिकली थायराइड ज्यादातर लोगों को नहीं, 90% लोगों को थायराइड है ही नहीं, बट दे हैव बीन टैग्ड थायराइड। उनको टैग किया गया, क्योंकि टैग लगाना भी आजकल शौक है ना। अरे मुझे तो इतनी बीमारी हो रही है, लोगों को अच्छा भी लगता है। तो सच में आपको ठीक होना है ये आप सोचो तो आपको समझना पड़ेगा हाउ बॉडी वर्क्स। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान को समझ में आना चाहिए हाउ दिस बॉडी वर्क्स। ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और कमाल की बात है, कोई डॉक्टर दुनिया में जानता ही नहीं है कि हाउ बॉडी वर्क्स। दे डोंट इवन नो 1% ऑफ हाउ बॉडी वर्क्स। 1% पास होता है, फेल होता है? फेल होता है जी। तो रिजल्ट दिखेगा ही ना। 1% वाले सारी दुनिया में इलाज करेंगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी। 80% ऑफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी ट्रीटेड थ्रू मेडिसिन। तो कफवात प्रकृति में प्रेशर तो बढ़ाना ही। अब प्रेशर आपने किसी वजह से कम कर लिया, या कह लो कि उतना नहीं बढ़ पाया, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। प्रेशर में एब्जॉर्प्शन होता है ना, आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट है, जो ग्लूकोज है, और आपके सेल्स में जो प्रेशर है, इन दोनों का प्रेशर डिविएशन डिफरेंस की वजह से ही तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सचेंज होता है। प्रेशर ग्रेडियंट में ही तो एक्सचेंज होती है चीजें। अगर एक्सचेंज नहीं होगी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा दिखाई देगा, मगर क्या वो नुकसानकारी है? नहीं। आपका शरीर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके निकाल देगा। प्रॉब्लम क्या है? आप मेडिसिन खा के उस ब्लड के ग्लूकोज को ऑर्गन में धकेलोगे। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। बॉडी अपने को बचाने के लिए क्या करता? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उस ग्लूकोज को निकाल देता। आपने केमिकल खा लिया, क्योंकि आप जब जन्म लिए थे तब आपने सोचा था, बॉन्ड भरा था भगवान के साथ में कि फिरंगियों को पैसा देना है अपनी गाड़ी कमाई का। सबने भरा था ना बॉन्ड पैदा होने से पहले। तो फिर क्यों केमिकल खा के शुगर को कम कर रहे हो? अरे कड़वी चीज खा के शुगर कम हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे? करेला का जूस पी के भी कम हो जाता है, क्यों नहीं कर रहे? क्यों मेडिसिन से ही आपको शुगर कम करना है? क्योंकि उससे नहीं करेंगे तो किसी फिरंगी को धंधा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी। तो कफवात प्रकृति में प्रेशर जो है, इट्स अ बून। उसी की वजह से एक्सचेंज होगा, शुगर लेवल आपको कम दिखाई देगा। प्रेशर अगर आपकी बॉडी में ठीक से बिल्डअप नहीं हो पाता तो आपका फ्लो नीचे के तरफ में कम, पेरिफेरी में कम होगा। आजकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी कितने लोगों को? प्रेशर अगर डिविएट करेगा तो आपके पेरिफेरल पार्ट्स में, बॉडी में पेन ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पे फ्लो नहीं हो रहा। तो कफवात प्रकृति के लोगों में एड़ी में पेन आता है, पांव में पेन आता है, सिर में पेन आता है, माइग्रेन का दर्द आता है। रीजन क्या है? फ्लो नहीं हो पा रहा। अब इसको एक और एनालॉजी से समझिए। कोई नीचे आप फूड खाते हैं, वो नीचे जाना चाहिए ना। इट हैज टू गो इन वन डायरेक्शन। ब्लड फ्लो भी एक ही डायरेक्शन में होता है, लिम्फ फ्लो भी एक ही डायरेक्शन में होता है, गैसेस फ्लो भी एक डायरेक्शन में होता है, हार्मोनल फ्लो भी एक डायरेक्शन में होता है। इसे नागवायु कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल फ्लो इज कॉल्ड एज नागवायु। अब कफवात प्रकृति या कफ प्रकृति जिनकी है, उसमें सपोज करो फूड खाया, नीचे की तरफ जाने में तकलीफ है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स आता है, ऊपर आता है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो नीचे नहीं जा रहा, आपने किसी चीज को नीचे जाने से रोक दिया तो वापस उल्टा आएगा ना। फिर नीचे जाने की कोशिश करा, फिर उल्टा आएगा। इसको कहते हैं गुल्म, गांठें, ट्यूमर। फीमेल में इस वक्त में कैंसर की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। गुल्म पहली निशानी, वहीं गोल हो गया, या ऊपर की तरफ जाता है ऊर्ध्वगत वायु, सिर में पेन होगा, माइग्रेन होगा, ग्लूकोमा होगा। क्यों फ्लो नहीं हो रहा? क्योंकि रुकावट है। कफ प्रकृति है, रुकावट है। तो कफ प्रकृति वाले के लिए एक्टिविटी ऑफ द बॉडी बहुत जरूरी है।
लेकिन आसान तरीका क्या है? अंदर आप प्रेशर क्रिएट करो ताकि फ्लो हो पाए ठीक से। अंदर प्रेशर अगर आप क्रिएट करेंगे तो कुंभक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसी भी क्रॉनिक डिजीज के लिए। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? कुंभक। आपके शरीर को ही एम्पावर करो कि वो ठीक कर ले। सपोर्ट लेना है तो कुछ नेचुरल सपोर्ट लीजिए, फूड का सपोर्ट ले लीजिए, या आयुर्वेदिक मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन, ऐसा सपोर्ट लीजिए। लास्ट रिसोर्ट केमिकल होना चाहिए, लास्ट रिसोर्ट, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक केमिकल खाना, कोई भी एक इंसान बता दो जो लंबे समय तक उसने दवाई खाई हो और उसकी लाइफ अच्छी हो, हेल्थ अच्छा हो, कोई और प्रॉब्लम नहीं आई हो। रिस्क क्या बोलते हैं? रिस्क हो जाएगा आगे चल के ये डैमेज वो डैमेज। तो जो नहीं खा रहे दवाई उसको तो डैमेज नहीं हो रहा, जो दवाई खा रहा है उसी को डैमेज हो रहा है। तो कफ वात प्रकृति आपकी प्रॉब्लम है। शरीर में फैलाव नहीं होता, शरीर में जितनी गर्मी आएगी, हैक बता रहा हूं, जितना गर्म होगा शरीर आपका उतना आराम मिल जाएगा आपको। जितनी गर्म चीजें आप खाएंगे उतना आराम मिल जाएगा। मिर्च खाओगे आपके शरीर को आराम मिलेगा। नमक आपके लिए नमक आपके लिए मेडिसिन है। नमक भेदक होता है, नमक आपके लिए मेडिसिन है। और ब्लड प्रेशर के लोगों को नमक नहीं खाने देते, कहते हैं कि नहीं नमक मत खाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, 1,000 2,000 4,000 10 लाख पहुंच जाएगा। नहीं साहब, ऐसा कोई भी देखा नहीं गया। ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहता ही नहीं है, इट गोज अप एंड कम्स डाउन। ये बॉडी, अगर आप अपने शरीर की क्षमता बढ़ा लें ब्लड प्रेशर को नीचे ले जाने की, तो उससे बढ़िया वही इलाज है। कोई और सपोर्ट से व्हील चेयर पे बैठ के आपके पांव मजबूत तो नहीं होने वाले, दवाई खा के आपका शरीर मजबूत तो नहीं होने वाला। तो कुंभक इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज, जितने भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के पेशेंट है, अगर कुंभक करेंगे दे विल नॉट गेट इनटू हार्ट अटैक। उनको सब बहुत जरूरी है। क्रॉनिक डिजीज में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो कुंभक है। प्रेशर, इसको वात कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। आपका शरीर दो ही चीजों पे काम करता है, प्रेशर, टेम्परेचर। दुनिया में कोई भी चीज, यूनिवर्स में कोई भी चीज किसके ऊपर काम करती है? प्रेशर, टेम्परेचर। ये पानी नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है पेड़ में? क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, प्रेशर में जा रहा है। पानी को भाप बनना है, बादल बन गया, अब बादल मूव करेंगे लो प्रेशर जोन में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दो ही चीज पे पूरा संसार काम करता है, प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर को कहते हैं वात, टेम्परेचर को कहते हैं पित्त। इसी से मटेरियल मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में, उसे कफ कहते हैं। वात पित्त कफ, यानी प्रेशर राजा, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बढ़ता है। प्रेशर राजा है, वात राजा है। और वात को कंट्रोल करने का तरीका क्या आपके शरीर का? कुंभक। तो कुंभक आयुर्वेद का राजा है, उसको गद्दी से ही हटा दिया। जब तक कुंभक गद्दी पे नहीं आएगा तब तक आयुर्वेद भी रूल नहीं कर पाएगा दुनिया को। सो कुंभक हैज टू बी ब्रॉट इन। व्हाट वी आर टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा विच गॉट लॉस्ट। हम उसको रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मगर हम शरीर को एम्पावर करना चाहते हैं। यू डू कुंभक एंड योर लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म। We'll take a few questions which people have shared. One question is about diabetes symptoms, जैसे numbness and muscle loss हुआ है, and also people suffer from blurry vision, neuropathy, retinopathy. So will the program actually help them out of this? Though you covered this, but मसल लॉस क्यों होगा? लेट्स अंडरस्टैंड मसल लॉस क्यों होगा। तो the formation of tissues in your body, the qualities of tissues are categorized into 7 different parts in Ayurveda. रस, प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, मांस, मसल। अब यहां तक ही रुक जाते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं। मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, मसल की बात कर रहे हैं। आपके शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी और मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। सीधी सीधी बात, इसको कोरिलेट करें। आपका शरीर कितना भोजन को इस्तेमाल कर पाएगा, उसी हिसाब से आपके शरीर में रक्त, ब्लड और मांस, मसल बनेंगे। तो आपने देखा होगा मसल किसके बन जाते हैं? जो ज्यादा वेट उठाते हैं मसल बन जाते हैं ना।
वेट उठा के मसल बनते हैं ना, पर वेट कैसे उठाते हो? बिना सांस रोके वेट उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो आप कह रहे हो वेट से मसल बनता, वेट से नहीं बनता, वेट तो एक निमित्त है। सांस रोकने से मसल बन रहा है, और उसका डायरेक्शन वेट की वजह से आ रहा है। जैसे राइट हैंड से वेट उठाएंगे तो राइट हैंड के मसल बन जाए। तो वेट बेसिकली डायरेक्शन देता है, मगर जब आप वेट उठा रहे हैं तो सांस को रोक रहे हैं। उससे होता क्या है, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मजदूर जो है वो आपसे ज्यादा भोजन करता है, कम भोजन करता है? अगर साथ ही में बैठ के आप फूड भोजन करें, लंच डिनर कुछ भी करें, तो डबल खा जाएगा आपका। आपके प्लेट में जितना अमाउंट है, जितना फूड है, उसे डबल खा जाएगा वो, क्योंकि वो उसका शरीर उतना इस्तेमाल कर रहा है। क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि वो पूरा दिन सांस रोक रहा है। जब भी आप एफर्ट करते हो तो सांस रोकते हो, वो पूरा दिन एफर्ट कर रहा है, तो भोजन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म उसका हाई है। तो मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, कुंभक कैपेसिटी। जब आप कुंभक करते हैं तो आपके शरीर में भोजन ज्यादा इस्तेमाल होगा, रक्त का फॉर्मेशन होगा। क्या इसका कोई ऐसा एग्जांपल है जो लैब रिपोर्ट से निकलता है? एचबी काउंट जानते हैं ना आप, हीमोग्लोबिन। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका जिंदगी में हीमोग्लोबिन 6-7 से ऊपर नहीं गया, और कुंभक करने के बाद वो आज 12 पहुंचा हुआ है। फॉर मोर देन 40 years उसका हीमोग्लोबिन गया ही नहीं 6-7 से ऊपर, कुंभक करने के बाद 12 तक पहुंच गया। क्या ये मैजिक है? नहीं, कुछ भी मैजिक नहीं है। आप सही काम करेंगे, सही रिजल्ट मिलेगा, सीधी सीधी बात है। और आपकी बीमारी अगर आप सोचते हो मेडिसिन ठीक कर देगा, नहीं करेगा। बाकी तो छोड़ो, अगर ईश्वर भी आ जाए तो आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा। कौन करेगा? आपका शरीर करेगा। उसको एम्पावर कीजिए। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो मसल लॉस पहली बात तो रुक जाएगा। लेकिन कुंभक करने पे एक और बात बताता हूं, आप मोटे नहीं हो सकते। मसल लॉस से रुक जाएगा, मगर जो मोटे लोग हैं वो बिल्कुल शेप में आ जाएंगे। मेरा ही वेट 106 107 किलो था। अभी मैं घी पी जाता हूं, पाव पाव भर घी पी जाता हूं, फिर भी नहीं बढ़ता। तो कहने का मतलब है, मसल लॉस अगर हो रहा है तो कौन सी दवाई रोकेगी मसल लॉस? कोई रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकती। आपको अपने बॉडी का होल्डिंग कैपेसिटी, रोकने की कैपेसिटी, कुंभक फैक्टर बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और क्या था? मसल लॉस, Neuropathy and retinopathy, blurry vision. न्यूरोपैथी, ब्लरी विजन। अच्छा, ब्लरी विजन के बहुत सारे कारक है, कारण है। और एक मेन ब्लरी विजन का कारण है जिसको कि मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी, या फिर उसको किसी बीमारी के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जैसे डायबिटीज के साथ में जोड़ा जाता है। न्यूरोपैथी की बात करूं और ये ब्लरी विजन की बात करूं, तो आपके आई का अगर प्रेशर ठीक नहीं होगा ना तो ब्लरी विजन होता है। इसको सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और भी तरीके से इसको बोला जा सकता है। इसमें और भी फैक्टर्स हैं जो मैं अभी इस वक्त में नहीं लाना चाहता, क्योंकि इसको करेक्ट किया जा सकता। अच्छा, एक्सीडेंटल आई हो जैसे मेरा है, लेंस फेंस निकल गया, सारा डैमेज हो गया बचपन में ही, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, उसको ठीक रखना, अभी तक बची हुई है मेरी आय। तो क्योंकि इसको बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। प्रेशर डिविएशन एक तो ये ग्लूकोमा, ब्लरी विजन, ठीक है ना, रेटिना डिटैचमेंट जिसे हम कहते हैं आरडी, और रेटिनोपैथी। आप इसको एक कैटेगरी, क्योंकि रेटिनोपैथी में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एक ही कैटेगरी मान लेते हैं रेटिनोपैथी, क्योंकि इसको न्यूरो नर्व्स के साथ भी हम जोड़ देंगे। तो आपके बॉडी का प्रेशर फैक्टर अगर ठीक नहीं होगा तो ये सारी चीजें प्रेशर फैक्टर ठीक नहीं होने की वजह से होता, एक पार्ट। दूसरा, टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो डैमेज किस वजह से होता है? वो मेटाबॉलिक इनसफिशिएंसी की, रीजनरेशन फैक्टर नहीं है बॉडी में, तो डैमेज होगा। तो न्यूरो का पार्ट आप जो बोल रहे हो ना, नर्व के डैमेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका शरीर रीजनरेट नहीं कर पा रहा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो डैमेज हो रहा है। रीजनरेशन नहीं हो रहा, डैमेज हो रहा है। अब क्या नर्व को रीजनरेट किया जा सकता है? बॉडी करती ही, बॉडी करती ही है नर्व को रीजनरेट। आप इतने छोटे बच्चे थे जब पैदा हुए थे, तो
तो आपकी नसें बढ़ी कि नहीं बढ़ी, नर्व्स बढ़े कि नहीं बढ़े, तो रीजनरेशन तो हुआ ही है ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, स्टेम सेल्स आप गूगल करके ये समझ लीजिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं। आपके बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, उसको अगर प्रॉपर ट्रिगर दिया जाए तो वो न्यूरो रीजनरेशन करवाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जितने वर्ड बोल रहा हूं ना, आप गूगल में जाके सर्च करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी नर्व का रीजनरेशन। वो कैसे होगा? जब आपके शरीर में स्टेम सेल्स को ट्रिगर मिलेगा तो न्यूरो रीजनरेशन के लिए वो काम करेगा। ट्रिगर कैसे दे सकते हैं आप? क्या कोई केमिकल से उनको ट्रिगर दिया जा सकता है? अगर केमिकल से उनको ट्रिगर दोगे तो आपका बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आज के टाइम पे इम्यूनोथेरेपी एक वर्ड डाला जा रहा है, इम्यूनोथेरेपी। ये बहुत खतरनाक चीज है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये है कि हम आपको जल्दी से जल्दी म्यूटेंट बना देंगे। ठीक है ना? इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या है? आपको हम जल्दी म्यूटेशन कर देंगे। नेचुरल ट्रिगर क्या है आपके शरीर का? आपके शरीर का नेचुरल ट्रिगर प्रेशर ही है। बचपन में जब आप चलने की कोशिश कर रहे थे उस समय जोर लगा रहे थे, सांस रोकते, एक बच्चे को ऑब्जर्व करिए ना, वो जंप करता है, शरीर को खूब हिलाता है, इधर उधर काम कर, क्या कर रहा है? प्रेशर प्रेशर जनरेट कर रहा है, कुंभक कर रहा है, और उससे उसका न्यूरो रीजनरेशन, मसल रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है ना? तो आज के टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि ठीक है खूब सारा एक्सरसाइज का शेड्यूल डाल दें तो भी बॉडी क्रैश हो जाएगी। आर यू दैट स्ट्रांग और रेजिलियंट टू टेक द बर्डन ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज? नहीं। हार्ट अटैक हो रहा है ना, खेलने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का, इससे जेनेटिक करेक्शन भी होता है और हमारे पास प्रूफ है इसका। प्रूफ है, लैब रिपोर्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाते हैं। द ओनली थिंग इज हमारे पीछे ना कोई डीप स्टेट बैठा ही नहीं हुआ। हर जगह जहां पे डीप स्टेट बैठा है ना वो उसको बढ़ा देता है ना। ना तो इंडियन डीप स्टेट हमारे साथ में है, ना तो वेस्टर्न डीप स्टेट हमारे साथ में। अगर वो आ जाए तो हम तो इसको पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट का पहली पद्धति बना दें और पूरी दुनिया एम्पावर हो जाए। बट अभी हमारे साथ में कोई डीप स्टेट नहीं है, ना इंडियन डीप स्टेट है ना वेस्टर्न डीप स्टेट है। कोई फंड नहीं कर रहा हमारे को, कोई पैसा नहीं डाल, जबकि हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जब होगा होगा, मगर आपको तो अच्छी करनी है ना अपनी लाइफ। आपको तो अच्छी करनी है। क्या न्यूरो रीजनरेशन होता है? होता है जी, बिल्कुल होता है, फास्ट होता है कुंभक से। नेचुरली भी होगा अगर अपने शरीर पे केमिकल बॉम्बिंग आप बंद कर दोगे, 2-3 साल के अंदर न्यूरो जनरेशन हो जाता है। लेवल कम होगा उसका, शरीर तो करता ही है उसको, इंटेंसिटी कम होगी, अमाउंट कम होगा। मगर अगर आप दवाई किसी तरीके से छोड़ दें, मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन, तो भी न्यूरो रीजनरेशन आपकी बॉडी में होगा। टाइम ज्यादा लेगा, 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल में हो जाएगा। तो कहने का मतलब न्यूरोपैथी हो, इसमें नर्व्स में भी अभी हम एक टेस्ट लेके आने वाले, नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जिससे हम प्रूव कर सकेंगे कि कुंभक करने के बाद में ये देखो न्यूरो रीजनरेशन होता। ठीक है ना? ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी आगे आने वाले फ्यूचर में विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर हम लेके आ जाएंगे, ताकि आप इसको देख सकें, सीधा सीधा प्रूफ आपके सामने हो। Swamiji, we have a question from Asha ji. She is suffering from diabetes. She's also posted other problems like lipid profile, blocked arteries, and autoimmune condition like Crohn's. So, will Kumbhak therapy help her? तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑटो इम्यून कंडीशन। हाँ, आपको बोला तो गया है ऑटो इम्यून डिजीज, मगर आपको मालूम है क्या इसका मतलब क्या होता है? आपको इतना बताया गया होगा, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो, उसका रिस्पॉन्स बहुत हाइटन अप हो जाता है, ऊपर उठ जाते हैं, और वो अपने ही शरीर को डैमेज करने लग जाता है। आपको ये बोला गया है। जरा इसको समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं, और जो मैं समझा रहा हूं आप बताइए कौन सा ज्यादा बेटर है वर्जन। ठीक है? और ये आपके लॉजिक को भी सूट करेगा। जब भी शरीर में कोई भी ऐसी चीज डालेंगे विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर,
तो वो अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना? सपोज कीजिए आपने कुछ ऐसा डाला जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है। जैसे कि डीजल की गाड़ी में आपने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो उसका इंजन तो वहीं सीज होता है। मगर हमारा शरीर कमाल का गैजेट है, कमाल का गैजेट है। इसको बहुत कोशिश करके भी इसके बारे में 1% समझता है ये करंट डिस्पेंसेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको हम एलोपैथी कह रहे हैं। 1% समझता है बस। तो ये अपने आप को बचाता है, आप कितना भी टॉर्चर करो ये बचाने की कोशिश करेगा। तो व्हेन यू पुट समथिंग विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर, तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर जाएगा और ये बचाएगा अपने आप को। तो आप एक केमिकल खाते हो, पैरासिटामोल सबके घर में है ना, दर्द की दवाई है ना, और डायबिटिक है तो फिर मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लाइकोलाइजाइड, रोजीग्लिटazone, पायग्लिटazone, ऐसा ऐसा कार्बोस, कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे होंगे आप। सुबह दोपहर शाम दर्द हुआ तो ये खा लिया, फीवर हुआ तो पैरासिटामोल खा लिया, एंटीबायोटिक ले लिया। वायरल में भी खा खा के, वायरल में कितने सारे बंदे गायब भी हो गए कोरोना में, दवाई खा खा के। जो दवाई नहीं खाया बेचारे बच गए। हाँ, जिसका शरीर झेलने लायक था वो बेचारा बच गया, जिसका शरीर झेलने लायक नहीं था गया। मगर किस वजह से? नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू यूज समथिंग लाइक अ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट, जब आप खाते हैं तो वो तो यू आर नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इनटेक, आपका शरीर डिजाइन नहीं है केमिकल इनटेक के लिए। तो आप क्या जब भी एक गोली खाते हैं तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स सबसे पहले ऊपर उठता है। इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म दोनों उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म, वायरल होता है तो भूख कम हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है भूख कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। बीमार होते हैं, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, भूख कम हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन। तो आप बार बार इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। फूड आपके लिए फूड नहीं रहा, एक अननोन चीज। शरीर सोचता है ये क्या चीज है, योर बॉडी कैनॉट रिकग्नाइज डिविएटेड फूड, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। और भी कई कारण से इम्यूनिटी बढ़ता है। द वेरी एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बहुत फैक्टर्स हैं। सांस ले रहे हैं आप, आपने हवा की इंग्रेडिएंट उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिए, सांस लेना खतरनाक हो गया, आपके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ रहा है। ये बार बार जब बढ़ेगा, एक छोटा बच्चा 2 किलो का पैदा होता है, उसमें वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल डाले जाते हैं, उसका इम्यूनिटी बार बार उठ रहा है। अगर आपका शरीर का इम्यूनिटी बार बार उठ रहा है आपको बचाने के लिए, तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देते हैं। मगर वो तो बचा रहा था बेचारा, उसने तो गलती नहीं की। आपने ही फेक शत्रु क्रिएट कर दिया ना, आपने ही एक फेक एनिमी क्रिएट कर दिया ना। इम्यूनिटी आपका शरीर जब उठाता है तो केवल अंदरूनी खतरे को टालने के लिए नहीं उठाता। आज के टाइम पे एंजाइटी कितनी बढ़ी हुई है लोगों में, एंजाइटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, इसे एड्रिनल फटीग कहते हैं। बार बार इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उसे एड्रिनल ओवर एक्टिविटी या एड्रिनल फटीग कहते हैं। आपके शरीर में जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी फंक्शन खराब हो जाता है, इसे पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं। आप कोई गलत चीज खाएंगे तो आपके हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होगा, पिट्यूटरी फंक्शन खराब हो जाता है। डायबिटीज जिसे आप कह रहे हैं, क्या इंसुलिन अपने आप निकलता है या उसको आपकी पिट्यूटरी ट्रिगर करती है? इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन, बहुत सारे फैक्टर हैं। मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों होती है। जिनको मालूम ही नहीं है वो सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कमाल की बात है। जिनको मालूम ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, वो सारे ट्रीटमेंट वही कर रहे हैं। जिनको मालूम ही नहीं है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? तो आप सारे गिनी पिग हो ना। अगर जिनको मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है वो आपके ऊपर अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप तो गिनी पिग हो, आप तो रिसर्च के गिनी पिग हो ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? तो इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? अगर आपकी बॉडी की टॉलरेंस अच्छी है, झेलने की क्षमता अच्छी होगी, तो आप झेल जाओगे। वरना जिस तरीके का इकोसिस्टम हमने क्रिएट कर दिया, इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं। आप सोचेंगे बच जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो आप क्या, आपको आपकी जितनी शक्ति टॉलरेंस होगा, आपका जितने बॉडी का रेजिलियंस होगा, जितनी सहन शक्ति होगी, तो आप झेल जाएंगे। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? टॉलरेंस बढ़ाने का एक एग्जाम्पल से समझिए। 10 किलो का वेट उठाओ, टॉलरेट कैसे करेंगे उसको? और 50 किलो का उठाना तो उसे कैसे टॉलरेट करेंगे? 10 किलो का वेट उठाने के लिए जितनी सांस रोकनी पड़ती है आपको, 50 किलो उठाने के लिए उसके 5 गुना सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर आपने बाहर का स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा दिया शरीर पे, तो टॉलरेंस आपने बढ़ाया नहीं, तो क्रैश तो लाजमी है। सभी क्रैश हो रहे हैं। सबसे पहला काम टॉलरेंस तो बढ़ाओ, ये नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि कोई और बुद्धिमान है, तो कोई बुद्धिमान नहीं है। फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है जिसके हम गुलाम हैं। मूर्खों के गुलाम महामूर्ख ही होंगे, और कुछ नहीं हो सकता। फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है। सबसे बड़ा क्राइम ह्यूमन बॉडी को म्यूटेंट बनाना है। सबसे बड़ा कोलोनाइजेशन मानव शरीर को खराब करना है। दुनिया में ना इससे बड़ा क्राइम कभी हुआ, और अगर हम ठीक हो गए 50 साल में, बुद्धि आ गई, ना इससे बड़ा क्राइम कभी करेगा कोई, अगर समझ में आ गया तो अपना टॉलरेंस बढ़ाएं कम से कम। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है साहब, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका ही अगर शरीर का कोई एक फैक्टर गड़बड़ हुआ तो आपका शरीर से ठीक कर लेगा, प्रोवाइडेड यू गिव योर बॉडी व्हाट इट डिजायर्स, व्हाट इट नीड्स, व्हाट इट डिमांड्स। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, इसको एम्पावर करें, आप मल्टीपल इश्यूज से निकल जाएंगे। One last question, Swamiji. So we have Mr. Nayak over here. He has lost his eye because of liver abscess or pus. So, kya Kumbhak therapy, this program or Kumbhak therapy will help him? आपका लिवर लिवर एब्सेस कह लो। लिवर एब्सेस का मतलब हो गया वहां पे इन्फेक्शन हो गया और उसमें पस फॉर्मेशन शुरू हो गया। पस फॉर्मेशन हमेशा इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएटेड होता है। दूसरा पार्ट ये कि टॉक्सिन ज्यादा होंगे तो भी ये हो सकता है। अच्छा, सबसे पहला हिट कौन लेता है जब आप एक केमिकल खाते हो? तो आपका लिवर। लिवर आपके शरीर का सेकंड ब्रेन है, गेट कीपर है। वो चेक करता है कि इफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इफ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मी और नॉट, ये बंदा सही है कि नहीं है, ये लिवर चेक करता है। सो व्हेन यू टेक मेडिसिन, इट ट्राइज टू थ्रो इट आउट ऑफ योर बॉडी। आप पैरासिटामोल खाते हो 500 मिलीग्राम, आपको चाहिए कितना? 5 मिलीग्राम चाहिए। तो 500 क्यों खा रहे हैं? क्योंकि 495 मिलीग्राम लिवर विल थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। तो ओवरडोज किया जाता है, लोड किया जाता है। सबसे पहला टॉर्चर आप यहां से शुरू करते हैं अपनी बॉडी का। इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। आपका शरीर नहीं लेगा बिल्कुल भी केमिकल को, मगर उससे ओवरलोड कर दो ताकि वो लिवर बाईपास हो जाए। इसे कहते हैं लिवर बाईपास मैकेनिज्म। अगर वो भी शरीर नहीं लेगा, लिवर रिजेक्ट कर रहा है, तो इंजेक्शन से ठोक दो शरीर में, आईवी दे दो, आईएम दे दो उसको। तो आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर करने के तरीके निकाल रखे हैं और उसको अच्छे अच्छे शब्दों से ढकते हैं। अंग्रेजी वर्ड वैसे ही हम हिंदुस्तानियों को नहीं समझ में आता, वो ज्यादा ही अंग्रेज बनने की कोशिश, अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान। समझ में आता नहीं कुछ भी उनको। तो आप सीधा सीधा देखो ना, टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपकी व्यान शक्ति ठीक नहीं है शरीर की, तो लिवर रिजुवनेट करने का जो टाइम होगा या कैपेसिटी होगी वो ना वीक होगी। अब लिवर को कॉन्टिन्यूसली अगर आपने डैमेज कर दिया, खास करके एंटीबायोटिक लिवर को डैमेज करता है, कोई भी पेन किलर लिवर को डैमेज करता है। जिसके घर में पैरासिटामोल है और एक जनरेशन खाती है, तो दूसरी जनरेशन, कम से कम तीसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, कैंसर होने ही वाला है। सब कैंसर होने ही वाला, यू कांट अवॉइड।
तो लिवर पे इंपैक्ट हर वो चीज जो शरीर में ठीक नहीं है वो डालती है। अगर लिवर अपने को बचाएगा कैसे, अब आपको बताता हूं। फैटी लिवर क्या होता है, किसी ने बोला फिट फैटी लिवर, फैटी लिवर क्या होता है? अपने शरीर के स्किन को खरोच लीजिए, जलन होगा ना, ये केमिकल रगड़ दो, कोई भी केमिकल रगड़ेंगे स्किन में इरिटेशन होगा, जलन होगी। तो जब शरीर के अंदर केमिकल डाल रहे हैं तो लिवर को जलन नहीं होगी क्या? लिवर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या? अब आप कैसे बचाएंगे उस जलन को? थोड़ा सा घी लगा लीजिए, मीठा तेल लगा लो, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो बेचारा लिवर भी तो घी लगाने की कोशिश कर रहा है, जब फैट एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो भी तो बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या फैटी लिवर गलत है? फैटी लिवर तो अच्छा है ना आपके लिए, बच गए आप। अगर लिवर फैटी नहीं होता तो एब्सेस हो जाएगा ना उसमें। अगर सपोज करो लिवर में फैट क्रिएट नहीं होगा तो सूख जाएगा वो। इसको क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं ना। क्या सिरोसिस केसेस बढ़ रहे हैं? इन्फ्लेमेशन होगा, आइटिस, हेपेटाइटिस। तो अगर लिवर का रिजुवनेशन फैक्टर ही वीक है और आप उस पर कोई भी दवाई डालो, लिवर को कोई भी मेडिसिन रिजुवनेट नहीं करता, लेकिन लिवर अपने आप को सबसे फास्ट रिजुवनेट करता, सबसे फास्ट ठीक करता। तो एक एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, मैं हैक दे रहा हूं, आप करिए, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हैक दे रहा हूं। पहला, शरीर का डिटॉक्स। दूसरा, शरीर को ठंडा करना। ये दो काम अगर आप कर लें, शरीर का डिटॉक्स करवा लें और शरीर को थोड़ा ठंडा करें, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो है उसका कोई मतलब चारा नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर की बल आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आप डिटॉक्स करो और ठंडा करो शरीर को, लिवर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल लिवर ठीक हो जाएगा। तो लिवर किसी भी हालत में जब तक 90% से ज्यादा डैमेज नहीं होता वो कुछ इंडिकेशन नहीं देता, क्योंकि वो ठीक कर सकता है अपने आप को, बहुत आसानी से ठीक कर सकता है, लेकिन आप उसको मौका ही नहीं दो ठीक करने का। ये हम कैसी स्थिति में आ गए? तो हमने ही लिवर डैमेज, और हर इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज है इस वक्त में। शहरों में दो में से एक बंदे का फैटी लिवर है ही। मगर फैटी लिवर गलत नहीं है, आप रीजन जानो वो फैटी क्यों बना। कोलेस्ट्रॉल गलत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से ही आप बचे रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं तो इंसान क्रैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका शरीर। कोलेस्ट्रॉल गलत नहीं है। आप अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ा दें, बल बढ़ा दें, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ये सब अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाएंगे। और हर एक के लिए अलग अलग होता है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन एक क्रिमिनल एक्ट है जो फिरंगियों ने पूरी दुनिया पे डाला, दुनिया को रूल करने के लिए। हर एक बंदा क्या एक ही हाइट का हो सकता है? ये तो गलत बात है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन, इतना ही ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इतना ही शुगर होना चाहिए, इतना ही ये होना चाहिए, ये बहुत गलत है। Thank you, Swamiji. You spent a lot of time over here answering questions.